और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है, पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज हम लोग देख लेते हैं कि कितना बड़ा हमारा पैसेज है, 2 स्लाइड 3 स्लाइड, चलिए बढ़िया मज़ेदार 3 स्लाइड का हमारा पैसेज है। और इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, इस पैसेज को हम लोग पढ़ने वाले हैं कितनी बार, 2 बार पढ़ने वाले हैं हर एक स्लाइड को, और उसके बाद जो है पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। चलिए तो आप रीडिंग शुरू करें, जब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ। चलिए तो मेरे साथ ही हम लोग साथ में, मेरे साथ पढ़ेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, स्लो पढ़ूंगा मैं फर्स्ट टाइम। An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks and men, women and children were crossing it. The mule drawn cart staggered up the steep bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it all, and the peasants plodded along in the ankle deep dust. But the old man sat there without moving. He was too tired to go any farther. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There were no so many carts now, and very few people on foot, but the old man was still there. Where do you come from? I asked. चलिए ये पढ़ा, अब इसको जो है एक बार थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ते हैं। An old man with still rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks and men, women and children were crossing it. The mule-drawn cart staggered up the steep bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it all, and peasants plodded along in the ankle-deep dust. But the old man sat there without moving. He was too tired to go any farther. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There were not so many carts now, and very few people on foot, but the old man was still there. Where do you come from? I asked him. ठीक है, तो ये 2 बार हमने पढ़ा, नेक्स्ट भी हम लोग 2 टाइम्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे। अभी केवल रीडिंग हमारी हो रही है और आप भी मेरे साथ पढ़ें, ठीक है। From San Carlos, he said and smiled. That was his native town, and so it gave him pleasure to mention it, and he smiled. I was taking care of animals, he explained. Oh, I said, not quite understanding. Yes, he said. I stayed, you see, taking care of animals.
I was last one to leave the town of San Carlos. He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his still rimmed spectacles and said, "What animals were they?" "Various animals," he said, and shook his head. "I had to leave them. I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta, wondering how long now it would be before we would see the enemy." "What animals were they?" I asked. "There were 3 animals altogether," he explained. "There were 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons." ठीक है, अब थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं इसको, यहां से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। Where do you come from? I asked him. "From San Carlos," he said and smiled. That was his native town, and so it gave him pleasure to maintain it, and smiled. "I was taking care of animals," he explained. "Oh," I said, not quite understanding. "Yes," he said, "I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos." He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his still rimmed spectacles and said, "What animals were they?" "Various animals," he said, and shook his head. "I had to leave them. I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta, wondering how long now it would be before we would see the enemy." "What animals were they?" I asked. "There were 3 animals altogether," he explained. "There were 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons." चलिए नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है उसका पढ़ते हैं, स्लो पढ़ेंगे। "And you had to leave them?" I asked. "Yes, because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery." "And you have no family?" I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. "No," he said, "only the animals I stated. The cat, of course, will be all right. The cat can look out for itself, but I cannot think what will become of the others." "What politics have you?" I asked. "I am without politics," he said. "I am 76 years old. I have come 12 kilometers now, and I think now I can go no further." "This is not a good place to stop," I said. "If you can make it, there are trucks up the road where it forks for Tortosa." "I'll wait a while," he said, "and then I'll go." "Where do the trucks go?" "Towards Barcelona," I told him. चलिए अब इसको तो जो है एक बार फास्ट पढ़ते हैं थोड़ा। "And you had to leave them?" I asked. "Yes, because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery." "And you have no family?" I asked, watching the far end of the bridge where a new last cart were hurrying down the slope of the bank. "No," he said, "only the animals I stated. The cat, of course, will be all right. The cat can look out for itself, but I cannot think what will become of the others." "What politics you have?" I asked. "I am without politics," he said. "I am 76 years old. I have come 12 kilometers now, and I think now I can go no further." "This is not a good place to stop," I said. "If you can make it, there are trucks up the road where it forks for Tortosa." "I'll wait a while," he said, "and then I'll go." "Where do the trucks go?" "Towards Barcelona," I told him.
ओके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये हो गया हमारा फिनिश, चलिए अच्छी बात है। तो ये हमने जो है 3 जो हमारी स्लाइड्स हैं, बड़ा थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसको हमने पढ़ा और समझा। पढ़ के जो है हमने एक आइडिया लगाया कि किसके बारे में है। तो बेसिकली एक 2 लोगों के बीच में कन्वर्जेशन हो रहा है, ठीक है। एक तो जो नरेटर है वो खुद, ठीक है, इसमें ये जो पैसेज राइटर जिसने ये पैसेज लिखा हुआ है वो जो नरेटर है वो स्वयं किस तरीके से उसका जो कन्वर्जेशन हो रहा है, एक तो नरेटर और दूसरा एक कोई बूढ़ा सा व्यक्ति है जो 76 इयर्स का है और जो ब्रिज के इस तरफ जो है किसी का इंतज़ार कर रहा है या कुछ उसको कोई टास्क दिया गया हो लगता है ना। उस 2 व्यक्ति के बीच में कन्वर्जेशन हो रही, बातचीत हो रहा है। इतना हमको एक बैकग्राउंड समझ में आया कि एक ब्रिज जो है, एक ब्रिज के उस पार ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मन का इलाका है और शाम का समय है और इस पार जो है निगरानी करने के लिए कुछ सोल्जर्स का भी मूवमेंट है, तो इसको शायद रखा गया हो। इस तरीके का कुछ ना कुछ मीनिंग इसमें हमने पढ़ने पर समझा, ठीक है। चलिए तो अब पूरा डिटेल में हम लोग जो है ना अब इसका मीनिंग समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये स्पेस क्लीन कर देते हैं ताकि हम लोग जो है इसको ठीक से समझ पाएं। ओके चलिए शुरू करते हैं। An old man with steel rimmed spectacle, कि देखो उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो एक बूढ़ा सा व्यक्ति है, ठीक है। कैसा व्यक्ति है? बूढ़ा सा व्यक्ति है और उसने स्टील का जो है रिम्ड, रिम मतलब पूरा चारों तरफ से ऐसे रिंग पूरा उसका जो रिम बना हुआ है, किसका? ऐसा स्पेक्टिकल उसने पहना हुआ है जो स्टील का है, ठीक है। और उसके साथ वेरी डस्टी क्लोथ, उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ही गंदे से हैं, ठीक है। एक बूढ़े व्यक्ति की बात हो रही है, वो बैठा हुआ है, ठीक है। कहाँ बैठा है वो? बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के एकदम बाजू में, रोड के जो है बगल में, रोड के साइड में जो है वो कहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है। देयर वॉज अ, आगे देखते हैं, देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर, की एक नदी है, ठीक है, एक नदी है और नदी के अक्रॉस द रिवर, नदी के पार, मतलब नदी के पार जो है एक ब्रिज है, ठीक है। जो अक्रॉस द रिवर का मतलब होता है, अच्छा, अक्रॉस द रिवर एंड द कार्ट, जो गाड़ियां हैं, नदियां और गाड़ियां, उसके बीच में जो है एक रिवर है, मतलब जो कार्ट्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उस समय जो घोड़ा गाड़ी वगैरह हुआ करती थी, उन दोनों के बीच में क्या है? एक ब्रिज है। मतलब जितनी भी कार्स हैं, जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स वगैरह मैन है, वो सब ब्रिज को क्रॉस करके उसके दूसरे साइड जो है वो जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, ठीक है, वो सीन है। तो देखो एक पॉन्टून का ब्रिज है, ठीक है, अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और उस पर से क्या हो रहा है? उस ब्रिज के ऊपर से एक तो कार्स, मतलब गाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी, टांगा वगैरह, ट्रक है, इंसान है, कुछ वुमेन हैं, बच्चे हैं, वो सब के सब जो है क्रॉस कर रहे हैं। किसको क्रॉस कर रहे हैं? उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। द म्यूल ड्रॉन कार्ट, जो घोड़ा गाड़ी, जो म्यूल जो होता है, खच्चर जो होता है, ये जो है स्टेगर्ड अप, मतलब ऐसे हिलती डुलती बिल्कुल आवाज करती हुई वो आगे बढ़ रही है। स्टेगर्ड अप द स्टीप बैंक, स्टीप बैंक मतलब एकदम ऊंचा बहुत, बैंक फ्रॉम द ब्रिज, ब्रिज का जो ऊंचा वाला हिस्सा है उसको क्रॉस करते हुए एक घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ रही है। और उसके अंदर क्या है? उनके उस घोड़ा गाड़ी के अंदर, उस गाड़ी के अंदर सोल्जर्स हैं, है ना। उसके अंदर क्या है? सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स हेल्प कर रहे हैं, कैसे? हेल्पिंग टू पुश, सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक ऑफ द व्हील्स, मतलब वो जो गाड़ी है कहीं पर फंसी हुई है ना, वो जो खच्चर गाड़ी है वो फंस चुकी है ब्रिज के आसपास, और उसको जो है ऊपर चढ़ाने के लिए, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए जो है सिपाही, कुछ सोल्जर जो है वो उसको धक्का लगा रहे हैं, व्हील को धक्का लगा रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये तो पूरा नज़ारा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति रोड के एक साइड में बैठा हुआ है, उसकी हालत एकदम गंदे से कपड़े उसने पहने हुए हैं, और एक ब्रिज है, एक आपको इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, पूरा आप इमेजिन करो, एक ब्रिज है, एक नदी है, उस ब्रिज पे से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, खच्चर गुजर रहा है ना, और कार्स वगैरह, घोड़ा गाड़ी वगैरह गुजर रहे हैं, और एक स्टैगर्ड जो है, जिसकी मतलब थोड़ी सी जो गाड़ी खराब हो गई है, कार्ट, उसको धक्का मार मार के जो है कुछ सोल्जर्स आगे की ओर उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे, देखो द ट्रक्स ग्राउंड अप का मतलब होता है वो ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एंड अवे हेडिंग आउट
ऑफ इट ऑल एंड द पीजेंट, मतलब ये सीन बता रहे हैं कि देखो ट्रक्स जो है वो आते हैं और धीरे धीरे सब वो वहां से गुजर रहे हैं, ब्रिज को क्रॉस करके गुजर रहे हैं, है ना। ऑफ इट ऑल पूरा उसको ब्रिज को क्रॉस करके गुजर रहे हैं। एंड द पीजेंट जो किसान वगैरह हैं, प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट, मतलब उसके बाजू में, कहाँ, रोड के साइड में जो है जो पीजेंट्स वगैरह हैं वो प्लॉट कर रहे हैं, मतलब वो खेती वगैरह का कुछ काम कर रहे हैं साथ साथ, जो नदी के रोड के बाजू में जो खेत है साइड में, उस पे जो है वो लोग काम कर रहे हैं। इन द एंकल डीप डस्ट, मतलब कितना कीचड़ है, एंकल के इतना, बिल्कुल पाँव से इतना कीचड़ है, उसमें वो लोग भरे हुए और अपना काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है उस जगह का नज़ारा है, ठीक है। आगे देखते हैं। बट द ओल्ड मैन सेड देयर विदाउट मूविंग, मतलब सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सब लोग चलित है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसान अपना काम जा रहा है, लेकिन ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, जिसके बारे में शुरुआत हो रही है, ये पता है क्या कर रहा है, ये वहीं पर बैठा हुआ है, विदाउट मूविंग, बिना हिले एक ही जगह पर जो है वो बैठा हुआ है। आगे देखते हैं। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फार्दर, मतलब वो इतना थका हुआ है, ऐसा लग रहा है, वो इतना ज़्यादा थका हुआ लग रहा है कि अब वो और आगे फार्दर जो है, आगे की ओर जो है वो नहीं बढ़ सकता, इतना ज़्यादा जो है वो थका है ना, ये बताया जा रहा है। चलिए, तो वो थका है इसलिए जो है वो वहाँ पर रोड के साइड में एक किसी जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज। अच्छा, अब ये कौन है, माय कौन है, ये लिखने वाला है, जो पैसेज को लिखने वाला जो नरेटर है, वो अब अपने बारे में बता रहा है। नहीं, देखते हैं क्या है, मुझे वही लग रहा है, देखते हैं। तो देखो, इट वॉज माई बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है। क्या है मेरा बिजनेस? टू क्रॉस द ब्रिज, कि मैं इस ब्रिज को क्या करूं, क्रॉस करूं। और क्या करूं, देखो मेरा क्या काम है, एक तो ब्रिज को क्रॉस करना। अब देखो, अभी पता चलेगा कि ये बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है या फिर जो लिखने वाला है नरेटर वो बोल रहा है, ये अभी अपने को पता चलेगा। तो ये मेरा बिजनेस है कि मैं ब्रिज को क्रॉस करूं और एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस। दोस्तों, ये किसका काम है, ये यही बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है। ये बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा जॉब है, मुझे एक काम मिला हुआ है। क्या जॉब मिला हुआ है? कि मैं इस ब्रिज को क्रॉस करूं टाइम टू टाइम और एक्सप्लोर करूं, फाइंड आउट करूं, पूरा ऑब्जर्व करूं। ब्रिज हेड मतलब ब्रिज के टॉप पे जाके आसपास सब देखूं, नजर रखूं। बियॉन्ड मतलब दूर तक नजर रखूं। एंड फाइंड आउट और पता करूं, किसको? टू व्हाट पॉइंट, कि किस पॉइंट तक एनिमी जो है वो आगे बढ़ चुका है। मतलब मेरा जो काम है इस ब्रिज से देखना एनिमी को, दुश्मन पर नजर रखना मेरा कार्य है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। दुश्मन कहाँ तक पहुंचा है, क्या हमारी ओर आ रहा है, क्या उसकी जगह पर है, वो कहाँ तक आगे बढ़ रहा है, तो ये मेरा काम है और वो काम जो है मैं अच्छे से कर रहा हूँ, है ना। ये समझ में आया हमें कि यहाँ पर वो क्यों बैठा था, उसका पर्पस क्या था, है ना। वो बेसिकली एक दुश्मन की चाल पे, दुश्मन के कदम पर नजर रखने के लिए बैठा था, जो कि उस पार है नदी के, कहीं वहां से आ रहा है। आगे, आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज। अच्छा, ये क्या करता था, मैंने ये काम किया, मतलब वो जाता ब्रिज के उस पार जाता, ब्रिज के टॉप पे जाता, सब दूर देखता, नजर रखता और वापस ब्रिज से नीचे उतरकर एक साइड में रोड के आकर वापस उसी जगह पर बैठ जाता। वो उसका काम है, वो उसका जॉब है। चलिए आगे देखते हैं। देयर वर, अब देखो आगे की बात, देयर वर नॉट सो मेनी कार्स नाउ। अब जो है और बहुत सारी गाड़ियां नहीं, इसका मतलब अब अंधेरा हो गया, दिन ढलने लग गया, मतलब ज्यादा अब गाड़ियां वहां पर नहीं है ना। दिन में तो बहुत ज्यादा वो शोर शराबा था, बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन अब बहुत सारी कार्स नहीं है। देयर वर नॉट सो मेनी कार्स एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट। बहुत ही कम लोग हैं जो पैदल वहां से गुजर रहे हैं, ठीक है। मतलब लोग भी जो है अब कम हैं। बट देखो बात बता रही कि बहुत कम लोग हो गए, गाड़ियां वगैरह भी कम हो गई। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर। जो बूढ़ा व्यक्ति तब भी वहीं था, मतलब दिन में तो वो था, जब बहुत शोर शराबा था, हलचल थी, तब भी था, लेकिन अब जब कम हो गए लोग, गाड़ियां भी कम हो गई, उसके बावजूद जो ओल्ड मैन है वो वहीं पर बैठा हुआ है, वो अभी भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। अब इन्होंने पूछा, अब ये जो आय कौन है? ये आय दोस्तों नरेटर है। ये कौन है? नरेटर है, जिसने
ये पूरा का पूरा पैसेज जिसने लिखा हुआ है। अब ये इसकी और ये जो बूढ़ा व्यक्ति जिसके बारे में पूरा इन्होंने एक परिचय दिया, एक उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि ये व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है, इसके कपड़े गंदे हैं, 70 बहुत बूढ़ा है, मतलब उम्र भी काफ़ी है इनकी, पर बाद में इसने खुद ने ही ये बात रिवील की, बताया कि मैं जो है निगरानी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उस पार से दुश्मन जो है कहाँ तक प्रोग्रेस उसने किया, कहाँ तक पहुँचा, आया या नहीं आया, और मैं वापस अपनी जगह पर देख कर वापस अपनी जगह पर आ जाता हूँ, है ना। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया उसके द्वारा। अब तो देखो आई आस्क्ड, अब ये क्वेश्चन क्या है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, तो मैंने उनसे पूछा बूढ़े व्यक्ति से कि भाई आप आए कहाँ से हो। तो देखो ये बूढ़े व्यक्ति ने क्या बताया, इसने बताया सैन कार्लोस, तो उन्होंने अपना पता बताया कि मैं जो है कहाँ से आया हूँ, सैन कार्लोस से आया हूँ, ये जगह का नाम है, ठीक है। सैन कार्लोस जो है क्या है, एक जगह का नाम है। आगे देखते हैं, ही सेड एंड स्माइल, उसने ये बोलकर स्माइल दिया। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, ठीक है, और क्या बताया गया कि ये उसका जो है नेटिव टाउन है, मतलब ये उसका जो मुख्य जगह है जहां वो रहता है ना, वहां का वो मूल निवासी है। एंड सो ही गेव हिम, इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड ही स्माइल, मतलब इसका जो उसने नाम लिया और नाम लेने के बाद उसके चेहरे पे खुशी आ गई, मतलब उसको अच्छा लगा कि हाँ मैंने अपनी जगह का नाम बताया कि मैं वहां का हूँ, ठीक है। अब देखो आगे उसने और क्या बताया अपने बारे में, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि मैं जो है वहां पर अपना जो मेरी नेटिव प्लेस है सैन कार्लोस, वहाँ पर मैं मेरे कुछ एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनका मैं ध्यान रख रहा था। उसने एक्सप्लेन किया। ओ आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ में नहीं आया ये कैसे कि आप जानवरों का ध्यान रख रहे थे, उसके बाद आप यहाँ पर कैसे आ गए, यहाँ पर क्यों बैठे हो आप। तो वो फिर समझाता है, ठीक है, वो अपने बारे में और बताता है। यस ही सेड आई स्टेड यू सी, देखो टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, उसने पूरा समझाया कि देखो मैं ना जानवरों का, अपने एनिमल्स का ध्यान रख रहा था, और मैं जो है आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस। इसका क्या मतलब है कि मेरे पूरे गांव को जो है, मेरा पूरा गांव खाली हो गया, मेरा जो सैन कार्लोस है पूरा गांव जो खाली हो गया, और मैं जो हूँ वो आखिरी व्यक्ति था जो उस गांव को मैंने खाली किया। मतलब एक युद्ध का पूरी परिस्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो है युद्ध होने वाला है, दुश्मन का हमला होने वाला है, पूरे गांव को खाली कराया गया, और ये जो व्यक्ति है ये आखिरी व्यक्ति है जिसने ये गांव छोड़ा है, मतलब बाकी सब लोगों ने गांव छोड़ दिया है ना। तो ये इस तरह का कुछ वहां पर सीन है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये लास्ट व्यक्ति जिन्होंने सैन कार्लोस को छोड़ा है। आगे देखते हैं। अब देखो जब ये नरेटर ने देखा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेफर्ड। अब शेफर्ड चरवाहा जो जानवरों को चराने का काम करता है और उसको उसके कुछ पैसे भी मिलते हैं, तो वो उसने देखा कि यार ऐसा तो नहीं लग रहा है, ये शेफर्ड जैसा तो नहीं लग रहा है, ना ये हर्ड्समैन लग रहा है। हर्ड्समैन जो घोड़े वगैरह चलाता है या बहुत सारे क्वांटिटी में उनके पास जानवर होते हैं, ना तो वो लग रहा है चरवाहा लग रहा है, ना शेफर्ड लग रहा है, भेड़ वगैरह चराने वाला लग रहा है। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ, काले से गंदे से कपड़े, मटमेले कपड़े की तरफ जब इसने देखा नरेटर ने इसके इस बूढ़े व्यक्ति के, इस ग्रे डस्टी फेस, उसका चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ, ग्रे सा पूरा मेल जमा हुआ उस पर, मतलब ये उसका अपीयरेंस बता रहा है, ठीक है। एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल, चश्मा उसने कैसे पहना था, स्टील रिम्ड, एकदम रिम लगी हुई थी स्टील वाली, है ना, और वो वाला चश्मा इन्होंने पहना। और ये सब देख के जो नरेटर ने पूछा उससे, व्हाट एनिमल्स वर दे, भाई आप जिस एनिमल्स को आपके गांव में सैन कार्लोस में चलाते थे वो कौन से एनिमल्स थे, है ना, तो कौन से एनिमल्स थे पूछा उसने। उसने बोला वेरियस एनिमल्स, मेरे पास बहुत सारे जानवर थे, अलग अलग प्रकार के थे, है ना। और क्या बोला, अंशुक हिज हेड, एकदम सिर हिला के, बहुत सारे थे, इस तरीके से बोला। और फिर क्या बोला उसने, बूढ़े व्यक्ति ने नरेटर को, कि आई हैड टू लीव देम, मुझे ना उन सबको छोड़ना पड़ा, मजबूरी में मुझे उन सबको त्यागना पड़ा। अब आगे देखो, आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज। अब देखो ये बता रहे हैं कि कैसे छोड़ना पड़ा, क्यों, ये उसका ड्यूटी, उसको बुलाया गया है ना, उसको एक ड्यूटी दी गई, क्या, आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज, मेरा काम था कि इस ब्रिज की निगरानी करना, एंड द अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ द इब्रो डेल्टा,
अच्छा, तो ये दुश्मन देश है, कौन सा? ये दुश्मन देश है, कौन सा? अफ्रीकन लुकिंग कंट्री। कैसा? अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ द इब्रो, मतलब जो नजदीक का पास का जो एक अफ्रीकन देश है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इब्रो डेल्टा, उसको उसकी निगरानी रखने का मेरा काम था कि वहां से कोई दुश्मन हमारे यहाँ आ नहीं जाए, वो हमला करने की साजिश रच रहे हैं, ठीक है, उस पर नजर रखने का कार्य था उसका, ठीक है। ये अफ्रीकन दुश्मन का देश है ये इब्रो डेल्टा। वंडरिंग हाउ लॉन्ग नाउ इट वुड बी बिफोर वी वुड सी द एनिमी, मतलब वो बिल्कुल इस बात पे सोच रहा है, विचार कर रहा है कि अब से, और मतलब कि पता नहीं कब जो है दुश्मन हम पर हमला कर दे। मतलब ये दौर कैसा है? एक ऐसा दौर है, ऐसे शहर में और ऐसे ग्राम, ऐसे क्षेत्र में है ये बूढ़ा व्यक्ति जहाँ पर जो है युद्ध का आगाज हो गया, शुरुआत हो गई, और बस एक इंतजार हो रहा है कि कब दुश्मन आ जाए हमारे नजदीक, कब हम पर हमला कर दे। उसकी तैयारी भी हो गई है, बहुत सारे गांव भी खाली हो गए, लेकिन ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, इसको ये टारगेट मिला है कि आप जो है यहाँ से निगरानी रखो, यहाँ से ध्यान रखो कि कब दुश्मन के कदम क्या है, वो कितनी दूर आ रहा है, और वो अपनी पीड़ा बता रहा है, वो अपनी व्यथा बता रहा है ना। देश का नाम भी देखो, अफ्रीकन कंट्री है इब्रो डेल्टा, ये दुश्मन देश है, और ये बस इस बात के ख्याल में ही है कि कब मतलब बस इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जो है हमारे ऊपर हमला कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वापस उसने एक ही बात पूछी, नरेटर ने क्या पूछा? व्हाट एनिमल्स वर दे, कि भाई ये तो बताओ कि वो एक्सक्यूज मी वो ये तो बताओ कि वो जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से थे, है ना, इस तरीके से उसने पूछा, आयास। तो फिर उसने बूढ़े व्यक्ति ने बताया, देखो देयर वर 3 एनिमल्स, 3 एनिमल्स थे टोटल, ऑल टुगेदर कितने एनिमल्स थे? 3 जानवर थे। उसने बताया कौन कौन से? 2 तो गौर थी, 2 बकरियां थी और 1 बिल्ली थी, ठीक है, 3 एनिमल्स थे। और कौन था? एंड देन देयर वर 4 पेयर ऑफ, तो ये देखो, एक तो दो तो क्या था? बकरियां थी, 1 बिल्ली थी, और 4 पेयर ऑफ पिजन्स थे। क्या थे? 4 जो पेयर थे, किसके? पिजन्स के, कबूतर के थे। ये बस इतने एनिमल्स थे, ठीक है। आगे, एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, फिर उसने नरेटर ने पूछा, और तुमको जो है, आपको जो है मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा, है ना, उसने पूछा। तो इसने बोला, बूढ़े व्यक्ति ने, कि यस बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्यों मुझे छोड़ना पड़ा? आर्टिलरी के कारण। अब आर्टिलरी क्या होता है दोस्तों? आर्टिलरी का मतलब होता है हमला, है ना, जब बमबारी होती है, आर्टिलरी का जो हमला होता है, गन फायर, गन शॉट्स वगैरह होता है, उसमें क्या होता है कि पूरे गांव पर दुश्मन है, भाई दुश्मन तो कहीं पर भी अटैक कर सकता है। आप देखो हमारे यहाँ कश्मीर में जो बारामूला क्षेत्र है, उरी सेक्टर है, वहाँ पे जो बॉर्डर पे रहने वाले गांव हैं, जब ऐसे तनातनी हो जाती है, ऐसे युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है गांव खाली करवाने पड़ते हैं, क्योंकि सिविलियंस पे सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं। आर्टिलरी, गन फायर वगैरह जो है वो सिविलियंस पे होता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि अगर हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा कि हम पर अटैक हो जाएगा, सारे इंसानों को मार दिया जाएगा, है ना। इसलिए जो है उसके कारण, उस आर्टिलरी फायर के कारण जो है इनको छोड़ना पड़ा अपना गाँव। अच्छा, और देखो, द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, और वहां का जो कैप्टन है, इनके साइड वाला जो आर्मी का कैप्टन है, उसने कहा कि तुरंत आप लोग क्या करो, गांव को खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पर फायर होने वाली है, आर्टिलरी की अटैक होने वाली है, ठीक है, इसलिए। चलिए, एंड यू हैव नो फैमिली, वापस नरेटर ने पूछा कि क्या आपका कोई परिवार नहीं है? तो फिर इसने क्या बोला? आई आस्क्ड, फिर देखो, वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ड वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक। तो वो इनका जवाब देते देते एक नजर उसने उधर, उस बूढ़े व्यक्ति ने उधर ब्रिज की तरफ भी नजर की, और वहां उसने क्या देखा कि कुछ ही गाड़ियां जो है जल्दी जल्दी ब्रिज से इस पार आती जा रही है ना, जल्दी से आ रही है, क्योंकि शाम भी पड़ रही है और युद्ध का टाइम भी हो रहा है ना। हो सकता है शाम नहीं पड़ रही हो, लेकिन युद्ध के कारण, युद्ध का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके कारण जो है, जो जल्दी कर रहे हैं सब लोग, तो वो भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो उसने फिर जवाब दिया कि नो, मेरे पास कोई भी परिवार मेरा नहीं है। ओनली एनिमल्स आई स्टेटेड, कि मेरे पास केवल जानवर ही थे, ठीक है। अब क्या? द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, कि देखो इनमें से ये जो कैट है, बिल्ली जो है, उसको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, वो अपने ख्याल, वो बिल्ली जो है वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, ठीक है। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, देखो लिखा है कि कैट जो है वो अपना ध्यान खुद रख सकती है, वो किसी तरीके से अपने आप को छुपा सकती है, बट लेकिन I cannot think what will become of the others, कि मैं ये, मुझे टेंशन हो रही है, मैं इस बात के लिए चिंतित हूं
कि जो दूसरे जानवर हैं, जो चार जोड़ी जो पिजन्स है, 2 जो गोट्स है, इनका क्या होने वाला है, ये तो मर जाएगी आर्टिलरी फायरिंग में, है ना। तो वो उसको चिंतित हो रही, कैट तो कहीं भी छुप सकती है ना, तो वो उसको चिंतित हो रही कि दूसरे जो जानवर है उनको थोड़ा सा खतरा है, ठीक है। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, अब इन्होंने पूछा नरेटर ने कि भाई किस पॉलिटिक्स, किस पार्टी को तुम रुचि लेते हो, पॉलिटिक्स किसका पक्ष लेते हो, है ना। इस तरीके से अब आपको पता है कि हर देश में एक राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी होती है, सबका अलग अलग मत होता है, विचार होता है, ठीक है। तो उसने पूछा कि आप जो है किस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हो। तो आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, इन्होंने कहा भाई मैं जो है न्यूट्रल हूं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मैं नहीं करता, ही सेड। और क्या कहा आगे उन्होंने, आई एम 76 ईयर ओल्ड, की भाई मेरी उम्र जो है 76 ईयर की है। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर। क्या बोला कि मैंने अपना गांव जो खाली किया वहां से मैं कहां तक आ गया हूं, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आगे तक आ गया हूं, और अब जो है मैं और आगे नहीं जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक तो मैं बूढ़ा हूं, 76 ईयर का हूं, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूं, 12 किलोमीटर मैं वहां से आया, है ना। तो इन सब कारणों से अब जो है मैं आगे नहीं जा सकता। चलिए, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, नरेटर ने उनको समझाया कि देखो भाई आप जो है या ये तो आपके लिए अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि युद्ध का आगाज हो गया है और कभी भी दुश्मन जो है ब्रिज को पार करके यहाँ पर आ सकता है ना। आई सेड इफ यू कैन मेक इट, मतलब अगर तुम वाकई में जा सकते हो, अगर तुम थोड़ा सा भी हिम्मत करो, मेक इट का मतलब है थोड़ी सी भी अगर आप हिम्मत करो, तो देयर आर ट्रक्स, बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, कहाँ, अप द रोड, रोड के ऊपर, मतलब उधर आगे की साइड थोड़ा सा रोड पर जो है ट्रक्स कुछ खड़े हैं, वेयर इट फॉक्स फॉर टोरटोसा की, जहां पर जो है वो ट्रक्स जो है आपको बिठाकर कहां तक छोड़ सकते हैं, आपको लिफ्ट दे सकते हैं, कहां तक लिफ्ट दे सकते हैं, टोरटोसा जो कि एक जगह का नाम है, उस टोरटोसा तक आपको छोड़कर आ सकते हैं। तो इन्होंने कहा, क्या कहा फिर बूढ़े व्यक्ति ने, आई विल वेट अ वाइल, कि भाई थोड़ा मैं इंतजार करूंगा, है ना, उसने कहा, एंड देन आई विल गो, पहले मैं थोड़ा इंतजार करने वाला हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा। और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि वेयर डू द ट्रक गो, कि ट्रक जाएंगे कहाँ, है ना। तो फिर उसने बोला कि ये ट्रक्स जो है बार्सिलोना जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बार्सिलोना जाएंगे, उसने जवाब दिया, है ना। वो किसके लिए इंतजार कर रहा होगा भाई, उसको एक ड्यूटी वो अपनी समझ के कर रहा होगा कि वो दुश्मन की एक्टिविटीज देख रहा होगा कि दुश्मन जो है कितनी आगे तक आ गया, और फिर वो रिपोर्ट करना चाह रहा होगा, तो ये कारण होगा, ठीक है। तो इसको हाँ, ये फिनिश हुआ हमारा, है ना, इसके आगे जो है नहीं है, ये फिनिश हुआ। और इसमें जो है दोस्तों हमको उम्मीद है कि जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, आपको एक आइडिया लगा होगा कि इसमें इस पर्टिकुलर पैसेज में जो है क्या है, किसके बारे में है। दोस्तों एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है ये, है ना, जो रहता है सेंट कार्लोस, एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर ये रहता है, और उस कार्लोस कस्बे को खाली कराया गया, है ना, और ये अकेला रहता है, उसके साथ कुछ जानवर भी हैं इसके, जिसमें क्या क्या है, 2 गोट है, एक इसकी कैट है, और उसके अलावा 4 जोड़ी जो है 4 पेयर पिजन है, और ये अकेला है। तो ये शुरुआत कहाँ पर हो रही है? ब्रिज के किनारे एक रोड के पास में ये बैठा हुआ है, एकदम मटमेला सा दिख रहा है, और सब वॉच कर रहा है कि किस तरीके से ब्रिज को क्रॉस कर करके जो कार्ट से घोड़ा गाड़ी लोग जो जल्दीबाजी में जा रहे हैं, और एक गाड़ी जो है एक खच्चर से चलने वाली जो गाड़ी है घोड़ा गाड़ी, ये टांगा जो है वो खराब हो गया, तो सोल्जर उसको जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है, लोग जल्दीबाजी में हैं, लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि युद्ध का सायरन बज गया है, युद्ध का अनाउंसमेंट हो गया, कभी भी दुश्मन जो है आकर अटैक कर सकता है। वो परिस्थिति में ये व्यक्ति जो है कहीं नहीं जा रहा है, वहीं पर बैठा हुआ है शाम तक, ठीक है। और फिर जो नरेटर है वो इससे कुछ सवाल पूछता है कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं। फिर वो अपनी पूरी बताता है कि मैं जो है यहाँ पे मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, बिजनेस है, कि मैं ऊपर जाके बार बार निगरानी रखूंगा कि दुश्मन जो है वो कितनी आगे तक आ गया है। और इस तरह से दोनों का कन्वर्जेशन होता है कि भाई आपके साथ और कौन है, फैमिली में कौन कौन है, फिर बताता है कोई भी नहीं है ना। तो ये पूरी जो स्टोरी है एक बूढ़े व्यक्ति की, ठीक, क्लियर हुआ। अब चलिए हम लोग पैसेज करते हैं, और बहुत आसानी से जो है आप लोग क्वेश्चंस करने वाले हो, मुझे पता है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आप लोग बताएं क्या आंसर होगा। वेयर वॉज द ओल्ड मैन कमिंग फ्रॉम, बताओ जरा कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहाँ से आया था वहां पर रोड पर। भाई उसका गाँव कौन सा था? उसका गाँव था
कौन सा था, सैन कार्लोस था, ठीक है, सैन कार्लोस था। टोर्टोसा तो वो ट्रक लेकर जाने वाले हैं, बार्सिलोना तो आखिरी जो वो पहुंचने वाले हैं, और एब्रो डेल्टा मुझे लगता है कि दुश्मन का गढ़ है ना, वो एब्रो डेल्टा दुश्मन गढ़ है हमारा जो है सैन कार्लोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नरेटर की ड्यूटी क्या थी, ठीक है, नरेटर की ड्यूटी नहीं क्या थी, नरेटर्स की ड्यूटी क्या थी, जो नरेटर वहां पर खड़ा था। अच्छा, हो सकता है नरेटर सिपाही ही होगा, है ना, या कुछ और होगा। देखो क्या बोला है, टू फाइंड आउट हाउ क्लोज द ब्रिज हैड एनिमी हैड एडवांस, वो है टू सी दैट ऑल द पीपल क्रॉस द ब्रिज सेफली, या टू हेल्प द कार्ड पास द ब्रिज, या टू हेल्प द पीपल क्लाइंब द स्टीप बैंक। अच्छा, तो ये जो ड्यूटी थी ये उस नरेटर की थी, मतलब ये नरेटर ना हमको एक सिपाही है, मुझे लगता है एक नरेटर कौन है, एक सिपाही है। देखते हैं, देखो यहाँ द ट्रक ग्राउंड अप हेडिंग ही वाज टू टायर्ड, ये देखो यहाँ पर ये ही वॉज टू टायर्ड, ये तो बात हो रही थी किसकी, बूढ़े व्यक्ति की। देखो यहाँ दिया हुआ है, इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, explore the bridgehead beyond and find out what point of enemy had advanced। ये जो है ना दोस्तों, I did this and return over the bridge, मैं वापस ब्रिज पे आया, there were not so many cars। अच्छा, तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये नरेटर के बारे में बताया है, उस नरेटर। अब इसको पढ़ने से ये लग रहा है कि ये एक सिपाही है। नरेटर कौन है, एक सिपाही है जो वहां पर ब्रिज के ऊपर ड्यूटी दे रहा है, और वो देख रहा है कि दुश्मन जो है वो कहीं दूर से दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये उसकी ड्यूटी थी। इसका मतलब ये जो बूढ़ा व्यक्ति है इसकी ये ड्यूटी नहीं थी, है ना, थोड़ा सा समझने में गड़बड़ हो गया, तो उसकी ये ड्यूटी नहीं थी, इस बूढ़े व्यक्ति की ड्यूटी नहीं थी। ये बूढ़ा व्यक्ति तो केवल अपना घर छोड़ के 12 किलोमीटर तक पैदल चला, और चूंकि ये बूढ़ा था और ये थक चुका था, इसलिए ये कहीं पर साइड में बैठ गया, और फिर वो सोल्जर जो कि ये नरेटर है वो वहां पर आया, उसने इनसे कुछ हालचाल पूछा, भाई कितने लोग थे, क्या थे, तो वो बातचीत हो रही है, मतलब उस बूढ़े व्यक्ति की व्यथा बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नरेटर है, यहाँ पर जो नरेटर है उसका कार्य क्या था, ये वाला कि टू फाइंड आउट, वो पता करें कि हाउ क्लोज टू ब्रिज हेड, मतलब ब्रिज के कितने नजदीक दुश्मन आ चुका है ना, ये पता करना जो है इस नरेटर की ड्यूटी थी। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ऑफ द एनिमल्स दैट द ओल्ड मैन हैड लेफ्ट बिहाइंड, हु कुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, बताओ जरा, वो एनिमल जिनको इसने छोड़ा था बूढ़े व्यक्ति को, उनमें से कौन सा एनिमल है जो अपना ख्याल खुद रख सकता है। तो जाहिर सी बात है कौन सा एनिमल है, कैट की बात हो रही है। ठीक है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। इसका बताएं, द ओल्ड मैन सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, भाई वो रोड की साइड में क्यों बैठे हुए थे वो ओल्ड मैन, है ना, क्यों बैठा था, किस कारण से बैठा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। क्यों बैठा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, वो और आगे नहीं चल सकता था वो, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है थक चुका था, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये ओल्ड मैन जो है किस बात के लिए चिंतित था, देखो, द ओल्ड मैन वॉज वरीड अबाउट, किस चीज के लिए, सेफ प्लेस जाने के लिए चिंतित था, या फिर सेफ उसके एनिमल्स की सेफ्टी, या नेटिव जगह उसने छोड़ दी उसकी, या कॉन्सिक्वेंस वॉर से क्या होने वाला है उससे जो घबराया, उससे उसके परिणाम से घबराया हुआ था। वो ना उसके एनिमल्स की सेफ्टी से ज़्यादा चिंतित था कि मेरे एनिमल्स का क्या होगा, उसके लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये तो हमारे जो है 5 क्वेश्चंस आपके पैसेज के फिनिश हुए दोस्तों। अब हमारा जो 33 वाला क्वेश्चन है ये वापस नए क्वेश्चन हो गया, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, नो इम्प्रूवमेंट का। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हमको देखना है कि ये अंडरलाइन पार्ट है, इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लग रहा है या फिर करेक्ट है। चलिए देखते हैं। द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट इट कैरीड ओनली 20 लाइफ बोट्स। ठीक है, तो जो टाइटैनिक जहाज जिसके बारे में आप सभी को पता है, जो डूब चुका था और काफ़ी 1500 लोगों की उसमें वो डूब गए थे, है ना, तो वो जो जहाज है, ठीक है, 1500 या 15,000 ऐसा कुछ है, लेकिन काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। तो ये टाइटैनिक जो है वो कंसिडर्ड कैसे, एज सेफ दैट, ये तो कॉम्बिनेशन गड़बड़ लग रहा है, या तो क्या होना चाहिए, एज सेफ एज होना चाहिए। ठीक है, ये कब होगा, जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें। ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो उस तरीके से होगा, या फिर दैट लगा हुआ है तो ये सो सेफ दैट
ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, या तो एज और एज का होता है या फिर सो और दैट का होता है। ठीक है, तो अब आपको मीनिंग वाइज डिसाइड करना है कि कौन सा वाला सही है भाई, एज होने वाला है या सो वाला होने वाला है। तो देखो, द टाइटेनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ एज, अब एज सेफ एज होता तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन के लिए कोई वर्ड होता, यहाँ पर जाहिर सी बात है पॉजिटिव कंपैरिजन भी नहीं हो रहा है ना, किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है पॉजिटिव तरीके से, मतलब यहाँ पर रॉन्ग क्या है हमारा, एज नहीं होने वाला, सो हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से कि देखो द टाइटेनिक वॉज कंसिडर्ड सो सेफ दैट इट कैरीड ओनली 20 लाइफ बोट्स, कि वो एक तरह से सटायर है कि देखो अपने आप को वो इतना ज्यादा सेफ समझता था टाइटेनिक की, केवल उसमें क्या था 20 ही लाइफ बोट्स उसके अंदर थी, इतना उसको उस पर भरोसा था कि ये तो कभी डूबने वाला है ही नहीं, ये बहुत बढ़िया शिप है। ठीक है, तो क्या होगा कि सो सेफ दैट, है ना, सो सेफ दैट, तो क्या होगा, तो टाइटेनिक वॉज कंसिडर्ड सो सेफ दैट, सो मच सेफ, मच तो नहीं आएगा, है ना, यही आंसर है अपना, सो सेफ दैट, सो और दैट, ये हमारा सही हो जाएगा डी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट एक्टिव वॉइस इसका बताना है। अच्छा, तो ये पैसिव वॉइस में देखो, द ट्रॉफी माइट बी वन बाय अस, कुछ इसमें चीजें हम लोग याद करें। ठीक है, एक तो क्या लिखा है, माइट बी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, माइट बी, तो माइट बी का क्या होगा दोस्तों, है ना, माइट बी का क्या होना चाहिए, तो माइट होना चाहिए, है ना, विन बाय अस। ठीक है, इजी है, देखो देखते हैं, ये शुरुआत क्या है, हम लोग पैसिव से शुरू करते हैं, पैसिव, और यहां पर जो है एक्टिव। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, ट्रॉफी माइट बी, तो सबसे पहले आप याद रखो कि ये जो माइट बी है, ठीक है ना, इसका केवल माइट होने वाला है, इसका केवल क्या होने वाला है, माइट है। जो बाय के बाद जो अस लगा हुआ है ना, अस जो लिखा हुआ है बाय अस, ये तो जो है हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और द ट्रॉफी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वी हो जाएगा वी माइट। ठीक है, क्या होगा, वी माइट, और वन, वन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो V3 जो है वो V1 हो जाएगा, मतलब ये जो वन है ये क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। तो शुरुआत किससे करेंगे हम, V। ठीक है, तो V हो गया, और V के बाद क्या, सीधा माइट, है ना, वी माइट विन द ट्रॉफी, क्या हो जाएगा, वी माइट विन द ट्रॉफी। लेकिन मीनिंग वाइज देखते हैं, वी वुड विन द ट्रॉफी, कि शायद हम ट्रॉफी जीत जाएंगे, वी माइट विन द ट्रॉफी, मतलब हम ट्रॉफी जीतने के हमारे बहुत ज्यादा चांसेस हैं, द ट्रॉफी माइट बी वन बाय अस। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, वी माइट विन द ट्रॉफी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से माइट भी जो है वो माइट हो जाएगा, वन का विन हो जाएगा, और अस का जो है बी हो जाएगा, सी वाला हमारा राइट आंसर है।